Hi everyone, I am Mrs. Aanchal Kesarwani. I am your history civics teacher. Let's get started with the first chapter, that is the making of our constitution. This chapter is given in your book. In this chapter we will study about definition of the constitution, meaning of the constitution, date of adoption, date of commencement of the constitution, implementation and the meaning of terms in the preamble, one by one. But first of all, I would like to give you little bit information before making constitution. As we all know, India was under the British rule for 200 years. Then India broke the first war of independence in 1857 by Indian sepoys. That first war of independence was also known as the Revolt of 1857. Finally, India got independence in 1947. Then the constitution made by the Constituent Assembly. After drafting the constitution was enforced on 26 January 1950. That is why this day is celebrated as Republic Day every year. On 26 January 1950, constitution was enforced. Now, the meaning of constitution. First of all, the constitution is the supreme law of India. Constitution सबसे बड़ा कानून है इंडिया का. मतलब in हिंदी we call the constitution as संविधान. constitution सबसे बड़ा law है. सारे रूल, सारे एक्ट constitution से बाउंड है. कैसे? It lays down the framework defining fundamental political principles and establishes the structure, procedure, powers and duties of the government. Government institution की जितनी भी duties हैं, जितनी भी power हैं, federal structure of the government है, हमारी fundamental rights हैं, fundamental duties of the citizen हैं, directive principles हैं government की, सारी चीजें constitution में लिखी हुई हैं. ठीक है? Constitution covers everything. It is a legal document bounded by the force of law. Children, you can copy down all the notes. It defines the structure of the government in a given country. If you want to understand the structure of the government in any particular country, you can read the constitution and you can understand the country's government. It defines the structure of the government. Government कैसी है वो constitution में, constitution को पढ़ के समझ में आ जाएगा उस country का. The constitution declares India as a sovereign, democratic and secular state. हम सभी जानते हैं इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, जहां पे वेराइटी ऑफ रिलीजन, वेराइटी ऑफ लैंग्वेज बोली जाती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को. फ्रॉम दैट डे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर हो गया एज अ सोवरेन कंट्री, एज अ रिपब्लिक डे. द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राजगोपालचारी पढ़ते हुए उन्होंने अनाउंस किया था कॉन्स्टिट्यूशन को. उस दिन से फ्रॉम दैट डे इंडिया बिकेम रिपब्लिक. देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाई थी, फ्रेम करी थी. इंटेंशन क्या था? इंटेंशन वॉज टू ड्रॉ अप द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू नेशन. ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि जो पहले इंडिया था ब्रिटिश रूल में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को जैसे बनाना है, न्यू नेशन बनाने, स्ट्रक्चर मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो कि इंडिया एक नए नेशन की तरह आए. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 2 रोल्स टू प्ले. 2 काम किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने. फर्स्ट है पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनाया, मतलब कि फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, तो फुल इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी बट इंडियंस की कुछ सीट्स हों, मिली जुली जिसको बोलते हैं सरकार. इंटरिम गवर्नमेंट बनाया. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ना हो, मतलब इन्फोर्स्ड ना हो, जब तक लागू ना हो जाए इंडिया में, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी. एंड अ गवर्नमेंट वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन मेड. गवर्नमेंट तब अपॉइंट करी जाएगी थ्रू इलेक्शन. सेकेंड, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एक मेन काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन तब तक बनाना है. Members of the Constituent Assembly were elected from the provincial government. जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जो वहां की गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड थी, सीट्स जो मिनिस्टर्स के थे, जो इलेक्टेड मेंबर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट के, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर बने टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.
एंड सम मेंबर्स जो प्रिंसली स्टेट्स के थे, सो दैट द असेंबली, प्रिंसली स्टेट्स जो लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था हिस्ट्री में, वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे, उसमें प्रिंसली स्टेट्स का ऑप्शन है, लॉर्ड माउंटबैटन ने दिया था, उसके मेंबर्स भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर थे, ताकि असेंबली में डाइवर्सिटी रहे, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहें, ताकि डाइवर्सिटी रहेगी तो वेरियस क्लॉसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो पाएंगे और हर सेक्शन के चीजें ली जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. आफ्टर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. In 1946, 3 members of the British cabinet, A.B. Alexander, Pethick Lawrence, and Sir Stafford Cripps, they put forward certain proposal to solve the problems in India. They decided कि legislative assemblies of the provinces were to elect the members of the Constituent Assembly. जो Constituent Assembly के members हैं, उनको elect किया जाएगा, मतलब Constituent Assembly के members बनाए जाएंगे to draft the Constitution. Constituent Assembly में 389 members, out of which 292 elected from the provinces, जो मैंने आपको previously बताया, provincial government से आई, and 93 from the princely states. 292 elected from the provincial government and 93 from princely states. Altogether 389 members. After independence and the formation of the Constituent Assembly of Pakistan, because after independence, India was divided into 2 parts. पाकिस्तान एंड इंडिया. द नंबर ऑफ मेंबर्स गॉट रिड्यूस. तो जब पाकिस्तान बना तो मेंबर्स कम हो गए. इन जुलाई 1946 इलेक्शन फिर से हुआ, बट द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द असेंबली. मुस्लिम लीग डिड नॉट अटेंड दिस असेंबली एंड दे डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, दैट इज पाकिस्तान. मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि मुझे दूसरा स्टेट चाहिए, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अटेंड नहीं करूंगा. On August 15th, 1947, 15th August 1947, Indian Independence Act was passed. That is why this day we celebrate as an Independence Day. वो passed हुआ और इंडिया को उस दिन पार्टीशन कर दिया गया into 2 separate states में, that is India and Pakistan, following which the British transferred their authority. और ब्रिटिश ने अपनी अथॉरिटी दे दी. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सारे इंडियन सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोग मेंबर बने. सम ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर्स जो नेशनल लीडर्स थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अब्दुल कलाम आजाद, वल्लभ भाई पटेल एंड सरदार बलदेव सिंह. अदर रिलीजियस एंड कम्युनिटीज had also had their representative too, such as Frank Anthony, जो एंग्लो इंडियन बोलते थे, एंड डॉक्टर HP Modi, who represented the Parsis. मतलब डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव बने थे इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, सच एज सरोजनी नायडू, दुर्गा भाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित. दे गेव वैल्यूएबल इनपुट्स टूवर्ड्स इन preparing the framework of the constitution. So children, you have to learn all these names carefully. Now 284, 389 member earlier before independence. Now 284 members of the Constituent Assembly ने sign किया document on 24th January 1950. Please learn this date. 2 days later, Constitution came into effect. That is 26 January 1950. I already told you 26 January 1950 was the adoption date of Constitution in India. तो before 2 days वो sign हुआ by 284 members. Learn this, very important. Constituent Assembly took almost 3 years. Constituent Assembly को 3 साल लग गए to frame Constitution. 2 years, 11 months, 17 days to complete this historic task, Constitution for Independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 3 साल लग गए. प्लीज लर्न दिस. ड्यूरिंग दिस पीरियड 11 सेशन हुए टोटल 165 डेज के, जिसमें से 114 डेज ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने में ही लग गया. आउट ऑफ 165 डेज 114 डेज वर स्पेंट ऑन ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन.
देन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट. कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट आया, डिक्लेयरिंग इंडिया एज अ सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर स्टेट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ओथ लिया एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू रिपब्लिक स्टेट. ऑन 20 December 9, 1946 at 11 AM फर्स्ट सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इन द सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, which was attended by 207 members. This was the first session of the Constituent Assembly, which was held in the Central Hall of the Parliament House in New Delhi on December 9, 1946. Dr. Sachidanand Sinha was appointed as the temporary chairman of the Constituent Assembly, and Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constituent Assembly. Dr. Rajendra Prasad president बने Constituent Assembly के और temporary chairman बने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. Good morning, my dear students. Hope you all are safe. In the previous video, we have studied the definition of the Constitution, the date of adoption, that is 26 January 1950, meaning of the Constitution, Constituent Assembly, working of the Constituent Assembly we have discussed. Today, in this video, we will study the drafting committee. The chairman of the drafting committee was B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar drafting committee के chairman थे. After India got independence, drafting constitution बनाने का काम start हुआ. First draft ready हुआ by February 1948. Indian people were allowed to deliberate on the first draft, and they could put their opinion and give suggestion to the drafting committee कि क्या क्या constitution में होना चाहिए. Indian people को allow किया गया था जब assembly नवंबर में मिली. Then in November 1948 ड्राफ्ट को क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडर किया गया, मुद्दे पे मतलब क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडर किया गया. दिस वाज कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 1949. तो 1948 फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हुआ, 1949 तक क्लॉज बाय क्लॉज आया. थर्ड एंड फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुआ नवंबर 1949 में. देन द प्रेसिडेंट साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली, और आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट वो डॉक्यूमेंट लीगल हो जाता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट बन गया व्हेन इट वाज साइंड बाय द प्रेसिडेंट. तो ये ड्राफ्टिंग कमिटी था. नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ये दिन स्पेशली सेलेक्ट किया गया इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब इनैक्टमेंट करने के लिए. मतलब कि इस दिन सारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, लॉज, ड्यूटीज, राइट्स जो भी अडॉप्ट करी गई है नवंबर 1949 में, वो अब इंडिया में एप्लीकेबल होगी. दिस डेट वाज सेलिब्रेटेड एनुअली एज इंडिपेंडेंस डे. इस दिन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको पूर्ण स्वराज के लिए इसी दिन 26 जनवरी 1930 में सेलेक्ट करते हैं. इसीलिए 26 जनवरी 1950 ठीक 20 साल बाद इसको इसी दिन को सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इस दिन पहले 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस का नारा लगाया, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी लाहौर सेशन में बाय जवाहरलाल नेहरू. तो आफ्टर 20 years 1950 में 26 जनवरी को ही स्पेशली सेलेक्ट किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. देन आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट हुआ, कमेंस्ड हुआ, एप्लीकेबल हो गया इंडिया में ऑन 26 जनवरी 1950. फ्रॉम दैट डे दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे. व्हाई वी कॉल आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज रिटन एंड लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? Our constitution is a written one, like the American Constitution. It is a very lengthy one because our nation deals with variety of culture and communities. In this, I have made a question why Indian Constitution is a very lengthy one. Since our nation is having a diverse culture, हमारे country में, India में
बहुत तरीके के कल्चर के लोग रहते हैं, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, डाइवर्स लैंग्वेज बोलते हैं, वेराइटी ऑफ लैंग्वेज, वेराइटी ऑफ रिलीजन लिव इन इंडिया। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लेंदी है और रिटन है, लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे जो डिवाइड हुए इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। बट प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रीएम्बल 448 आर्टिकल्स, जिसमें से डिवाइड किया गया 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, 101 अमेंडमेंट्स एंड 5 अपेंडिसेस। अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस, जो बाद में चेंजेस होते हैं लॉज में, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी 448 आर्टिकल्स हैं। नाउ आई वांट यू चिल्ड्रन टू राइट these important dates. Learn these important dates. First is 9 December 1946. इस दिन Constituent Assembly first time मिली थी, Constituent Assembly met first time. Then 13 December 1946, Objective Resolution moved. Now what is Objective Resolution? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को लाया था। ये क्या है? ये एक तरीके से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, एक तरीके से एज अ रोड मैप है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को, मेंबर्स को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उनको उनका ऑब्जेक्टिव पता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डालना है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ क्लॉज रखना है कि इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाया जाए। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड टू बी द क्रिएशन ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आई एम टेलिंग यू अगेन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। इट्स व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये एक तरीके से रोड मैप है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों को, मतलब फ्रेमर्स को बताया गया है, कि डिक्लेयर किया गया है कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि वो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया कहलाए। असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डिवाइडेड इंटू 8 मेजर कमिटीज। इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं ड्राफ्टिंग कमिटी, जो अभी हम लोग ने पढ़ी थी, the Committee on Fundamental Rights, which we will study later, Union Parts Committee and the Union Constitution Committee. These 4 are important ones. Now come back to important dates. Third is 26 November 1949. इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया गया था, मतलब कि बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन। Then 24th Jan 1950 मेंबर्स ने साइन कर दिया था। एंड देन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड असेंबली एग्जिस्ट, विच वी ऑल्सो कॉल्ड एज रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाइलेशन ऑफ सोर्सेस। मतलब कि टू मेक द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया है तो कई कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से यूनिक चीज़ें ली गई हैं और तब जाके हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मतलब आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट जिसमें बेस्ट आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम लिए गए हैं वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज से। द लीडर्स ऑफ आवर नेशन डिस्टिल्ड दीज थॉट्स ऑन फ्रीडम एंड मॉडिफाइड देम टू सूट मॉडर्न इंडिया। एक मॉडर्न इंडिया, एक नया इंडिया बनाने के लिए, एक सोवरेन रिपब्लिक इंडिया बनाने के लिए उन्होंने फ्रीडम के थॉट्स लिए हैं बाहर की कंट्री, मतलब कि दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके। वाइल डूइंग दिस दे वर इंस्पायर्ड बाय वेरियस डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस, जो उनको अच्छा लगा, जो आइडियाज अच्छे लगे दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के, वो उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया गया, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर लिया गया एंड हिज रोल,
लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे लॉ बनता है पार्लियामेंट में, वो सारे रूल्स लिए गए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। देन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स लिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स में भी फंडामेंटल राइट्स का चार्टर है। राइट्स, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर, आज भी यूएसए में प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंटशिप का कंसेप्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, these are the guidelines for the government while making policies for the state। तो ये डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये गाइडलाइंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो कैसे रूल करेगी या फ्रेम करेगी। जब वो पॉलिसीज फ्रेम करेगी फॉर द स्टेट, तो वो इन सब बातों का ध्यान रखेगी। वो सारी गाइडलाइंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहलाती है। तो ये कंसेप्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, आयरलैंड से। देन फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट, एक नागरिक, एक सिटीजन का फॉर द कंट्री, टूवर्ड्स द कंट्री क्या ड्यूटी होनी चाहिए, वो यूएसएसआर से लिया गया, विच वी कॉल्ड सोवियत यूनियन। नाउ I have some questions for you all. You need to answer these questions and write in copy. When the school will reopen, I will check. So first question is, what is constitution? Second question, who was the chairman of the drafting committee? Third question, on which day the constitution was enforced and why, I already told in this video. Fourth question, why our constitution is a written and lengthy one? Fifth question, what were the main tasks of the Constituent Assembly? Sixth question, how many articles are in the Indian Constitution presently? So these are the questions for you all children. They are very easy and very important for you. Okay, thank you.